Dear students, how are you? Today we discuss the topic on autocorrelation. Which last time we have discussed about what do you mean by heteroscedasticity and what are the consequences of heteroscedasticity and how we can check the heteroscedasticity uh, in our given data. Now we are discussing today the topic on autocorrelation. What do you mean by autocorrelation? And what are the main consequences of autocorrelation and how we can detect the autocorrelation and what are the main tests which are related to autocorrelation? The term autocorrelation may be defined as the correlation members of the series of observation in order in time as a time series data or space or cross sectional data. तो अगर हम डिस्कस करें कि ऑटो कोरिलेशन क्या है तो we know that auto correlation is the series of correlation between the error term of given data. So it's mean that last time it is the problem of basically it is the problem of time series data. In last time we have discussed that the heteroscedasticity. Heteroscedasticity mean the data of cross-sectional data in which we see that the unequal spread of error term. So student basically these all the problem related with the blue estimator. Best linear unbiased estimator उसकी हमने कुछ assumptions पढ़ी थी. In blue estimator we have discussed about that the expected value of mu is equal to 0 यानी error term का mean 0 होना चाहिए. Its variance जो होना चाहिए वो constant होना चाहिए error term का variance which is related to problem of heteroscedasticity. Today we discuss about the covariance of error term. Correlation of error between disturbance term which is equal to 0. So in this regression contest, the classical linear regression model assumes that such a autocorrelation does not exist in the disturbance term. Symbolically, if we see that expected value of mu I and mu j is equal to 0, it means that I is not equal to j. अगर हमारा it mean that over error term of I is not equal to error term of j. What do you mean by it? Simply, students, if we have a time series data like 1980 and 1981, this 2 years data. When we estimate this data, so 1980 data has on error term which is equal to mu I and 1981 has on error term which is equal to mu j. So basically the problem of autocorrelation is that the error term of previous year correlated with error term of current year यानी previous year की error term जो है वो current year के error term के अंदर जो है इसके साथ relate कर जाए इनका correlation हो जाए. This is the problem of autocorrelation. So here the classical assumption is that expected value of mu I and mu j is equal to 0. इस error term का जो mu I है और mu j है इसके हमने relationship को क्या करना है 0 करना है. This is the basic classic linear model which is says that the error term of ui and uj is equal to 0. और इसको 0 करने के लिए जो हम terminology यूज करते हैं which is called the autocorrelation. The relationship of error term with past year with with current year इनका जो आपस में relationship होता है वो 0 होना चाहिए. Put simply, the classical linear model assumes that the disturbance term related to any observation is not influenced by disturbance term related to any other observation. For example, what do you mean by it? It means that कि 1980s की जो error term है वो influence नहीं करे उसका जो बच्चा खचा जो
यानी रेजिड्यूल है वो ओवरलैप ना करे विद करंट 1981 को। अगर ये ओवरलैप करेगा तो इट्स मीन दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। इफ it don't overlap with one another, which we can say that this is not the problem of autocorrelation in this model. For example, if we are dealing with the quarterly time series data involving the regression of output on labor and capital inputs, if says that there is the labor strike affects the output in one quarter, and there is no reason to believe that this disruption will be carried over the next quarter. That is, if the output is lower this quarter, there is the reason to expect, there is no reason to expect it to be lower next quarter. Similarly, if we are dealing with the cross-sectional data involving the regression of family consumption expenditure on family income, the effect of increase the one family income it on its consumption expenditure is not expected to affect the consumption expenditure on other family income. So here we can see that कि यहाँ पे हमने देखा कि अगर एक फैमिली क्वार्टरली डाटा गिवन है और हम कह रहे हैं कि ये लेबर जो है वाई इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, आउटपुट इज फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो स्ट्राइक की वजह से वी कैन से दैट लास्ट ईयर 1980s में स्ट्राइक हुई और जिसकी वजह से हमारी आउटपुट डिक्रीज हो गई। So in current year, if the error term of previous year is correlated with the error term of current year 1981 में, तो वो स्ट्राइक का इम्पैक्ट अभी भी आ रहा होगा। So it's been that in time series data, this is the problem of autocorrelation. However, if there is such a dependence, we have a autocorrelation. अगर इनके दरमियान में डिपेंडेंस है तो हम कहेंगे कि autocorrelation का प्रॉब्लम है। So here you can see that expected value of mu I and mu j is not equal to 0. It is the problem of auto. It is the problem of auto correlation. So if we can see that expected value of mu I dot mu j equal to 0, it means that there is no auto correlation. If ye not equal to 0 mean no autocorrelation। here I in equal to not equal to 0, इसका मतलब ये है कि इनका यानी जो रिलेशनशिप है वो 0 नहीं है बल्कि कुछ समथिंग है। तो इट्स मीन दैट दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ autocorrelation in our data. In this situation, the disruption caused by strike this quarterly may be very affect output in next quarter. So increase in the consumption expenditure of one family may be very well prompt another family to increase the consumption expenditure. So it's mean that कि जो हमारी error term है previous year की error term which vary with the current year error term उसके ऊपर overlap कर रही है। तो this is the problem of autocorrelation. If there is no problem of autocorrelation, we can say that expected value of mu I and mu j is equal to 0. How can we detect the autocorrelate? So here we can see that there are multi-type of autocorrelation is available in our data. In first graph, you can see that the autocorrelation in zigzag form, which can say that this is called the non-linear cubic autocorrelation function. Here in next slide, you can see that there is positive autocorrelation. Positive means there is positive relationship between time and error term। error term का अगर time के साथ positive relationship है, we can say that this is called the positive autocorrelation। Here in C, we can say that there is negative relationship between error term, disturbance terms and time series। This type of autocorrelation we can say that this is called the negative autocorrelation। And last slide, in this slide you can see that this is
the curve share autocorrelation, you can see that here the vertical side we can see that expected value of error term, and horizontal side we can see the time series. Due to time span, the autocorrelation firstly it is increased and then constant and then decrease. This is called the quadratic shape autocorrelation. इसको हम कहेंगे quadratic autocorrelation. So this is the four type of autocorrelation. You can see that we detect the autocorrelation with the graphical shape. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि autocorrelation में भी cubic, may be positive, negative or quadratic. So these are the type of autocorrelation exist in the data. Next, here we can see that students over expected term on the vertical side and over time series data on the horizontal side. Maybe this is the time of 1980. You can see that 1980, 1981 and 82 up to 2022 ये डाटा है हमारे पास. तो ये देखें कि ये हमारे पास एक स्मूथ चल रहा है इस लाइन के ऊपर. सम क्रॉस above the line and some class below the line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these negative side of the cross and above the line, this is called the positive cross, and their magnitude are also same. So we can see that this cross effect is cross the downward effect, and this cross, second cross is also same magnitude as third cross, and these are also nullify the effect of negative autocorrelation. The positive autocorrelate negative. So here we can say that this is called the no auto, because if we have the first graph, the magnitude of first graph is positive 2, the magnitude of lowest class is negative 2. This negative 2, positive 2 affect the cancel the effect of each other. So we can say there is no autocorrelation in this data. अब question raise हो रहा है, why does the serial correlation occur? Why the serial correlation occur in the data? There are the several reasons, some of which are the following. कि ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम जो होता है वो डाटा के अंदर कैसे आकर होता है, और ये सीरियल कोरिलेशन क्यों आकर होता है, इसकी लॉजिक क्या है. The first and foremost logic of autocorrelation is inertia. What do you mean by inertia? A silent feature of most economic time series data is inertia or sluggishness. As it is well known, the time series data such as the GDP, price index, production, employment and unemployment habit cycle starting the bottom of the recession. When the economic recovery starts, most of the time series start moving upward. In this upswing, the value of the at time at one point in time is greater than the previous value. So there is the momentum built into them, and this is continue until something happens. In increase in the interest rate or tax are both slow down them down. Therefore, the regression involved in time series data successive observation are likely to be interdependent. So ये first and foremost जो इसकी logic है वो inertia mean कि you know that over GDP data is moved along with the time, like at that 1980, 1981, 1982, 83 and so on. तो ये हमारे पास ईयर है और हमारी जीडीपी है 5%, फिर 6% है, 7% है, 8% है. तो जब जीडीपी में इंक्रीमेंट आ रहा है तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे वेरिएबल भी ऐड अप हो रहे हैं कि जो हमारे एरर टर्म स्टोकास्टिक टर्म में होते हैं, और हमारा ओवर द टाइम ये दिस इज द स्मूथ टाइप डाटा एंड एनुअली डाटा. तो ओवर द टाइम हमारे जो एरर टर्म भी होता है वो कोरिलेट कर रहा होता है विद प्रीवियस एरर टर्म, और जब ये कोरिलेट करते 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 इसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि यू कैन से दैट
the covariance of 1980, covariance of 1981, covariance of 1982 and 1983 ये आपस में रिलेट करते हैं। तो को ओवरलैप करते करते हमारे यानी एरर टर्म की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कोरिलेशन के, we can say that this is the problem of autocorrelation due to inertia. Inertia means the data of time series data of GDP which is collected from different uh, component like production, employment, unemployment. तो उनकी वजह से ये जो डाटा के अंदर इंक्रीज आ रहा होता है एनुअली, तो उसमें एक एरर टर्म भी उसके साथ रिलेट करता रहता है आतम के एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जिस वजह से वो वहां पे फील होता है कि दिस इज द टाइप ऑफ ऑटो कोरिलेशन, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इनर्शिया। द सेकंड एंड foremost problem is called the specification bias. Specification bias या excluded variable केस में भी auto correlation का प्रॉब्लम आ जाता है। For example, suppose we have the following demand function. So here we can see that yt is equal to beta 1 plus beta 2 x2t plus beta 3 x3t plus beta 4 x4t plus mu. So in this demand function, we can see that yt is over quantity of demand of t. x2t जो है वो हमारे पास प्राइस ऑफ बी है, यानी ऑन प्राइस ऑफ इट प्रोडक्ट लाइक प्राइस ऑफ बी। x3 जो है वो कंज्यूमर इनकम है। x4 जो है प्राइस ऑफ स्टॉक है एंड t is the time. However, for some reason we run this following regression, yt is equal to beta 1t plus beta 2t x2t plus beta 3 x3t and plus mu. सो बाद का ये होता है कि हम बीटा 4 जितना प्राइस ऑफ पॉक को हम जो है एक्सक्लूड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इसके की वैल्यू को हम जो है छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम फेस आता है। नाउ इफ 12.1.2 is the correct model of the truth or true relationship running in 12.13 is called the tantamount to letting yt is equal to beta 4 plus beta 4 x2 4 plus mu t at the extent of this price of pork affect the consumption of beef. The error or disturbance term v will be reflect the systematic pattern. This is create the autocorrelation. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वजह है ऑटो कोरिलेशन की कि सबसे पहले हमने बात की कि ऑटो कोरिलेशन हमारा वो बेसिकली इनर्शिया की वजह से होता है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया लास्ट स्लाइड वन स्लाइड में कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो कोरिलेशन। तो ऑटो कोरिलेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन द एरर टर्म। जब एरर टर्म आपस में कोरिलेट कर जाए इन अदर जो हमारे डिस्टर्बेंस टर्म है, this is the problem of autocorrelation. And how we detect the autocorrelation, we see in next slide that the autocorrelation is the we can see here, this is the cubic autocorrelation, this is the positive type of autocorrelation। टाइम सीरीज के साथ साथ हमारा एरर टर्म डिस्टर्बेंस टर्म इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे नेगेटिव ऑटोकोरिलेशन में के टाइम विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम हमारे पास ऑटोकोरिलेशन की वैल्यू डाउन हो रही है। And last one is over called the cubic quadratic autocorrelation. Okay sir, thank you sir। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ मैं, तो सर आप कंटिन्यू कर लें, मैं अगर जवाब ना दे पाया हूँ तो मैं तो the autocorrelation mean the correlated the values of error term जो आपस में उनका कोरिलेशन हो जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। और ऑटो कोरिलेशन के लिए हमने पहले ब्लू एस्टिमेटर बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर की जो एजम्पशंस पढ़ी थी क्लासिकल लीनियर मॉडल की, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन म्यू इज इक्वल टू 0, हमारा मीन 0 होना चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, इट्स मीन दैट ओवर वेरिएंस इज कांस्टेंट। तो पहले हमने एजम्पशन को पढ़ लिया था कि मीन 0 है। वेरिएंस कांस्टेंट के लिए लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर को डिस्कस किया था हेटेरोजाइगोसिटी वाला,
Today we discuss the covariance of error term. Expected value of mu I and mu j is equal to 0. This is the problem of autocorrelation. अगर expected value of mu I and mu j is equal to 0, it means there is no auto. We can say that there is no correlation between these two error term. इन error term के दरमियान में कोई relationship नहीं है. जिस तरह हमने लास्ट टाइम डाटा लिया 1980s का, 1981 का, 82 का, और हम जीडीपी का डाटा ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जीडीपी ऑफ प्रीवियस ईयर नॉट कोरिलेटेड विद द करंट ईयर. इसकी एरर टर्म भी आपस में रिलेट नहीं कर रही हैं, उनमें ओवरलैपिंग नहीं है, तो यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम नहीं है. If our RM term are correlated with one another, we can say that it is the problem of autocorrelation. So here we can say that the error term of ui and uj, mu I and mu j is not equal to 0. It means that के 1980s का जो एरर टर्म है 1981 के एरर टर्म के साथ कोरिलेट कर रहा है. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन. ऑटो कोरिलेशन में भी वी कैन से दैट क्वाड्रेटिक शेप में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्यूबिक शेप में भी हो सकता है. दीज आर ऑल द शेप्स ऑफ ऑटो कोरिलेशन. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे ये लीनियर है, तो इट्स मीन दैट वी कैन से दैट दिस इज नॉट द टाइप ऑफ ऑटो कोरिलेशन, क्योंकि हमारे जो पॉजिटिव क्रॉस है वो नेगेटिव क्रॉस, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं. तो जब इम्पैक्ट को कैंसिल करेंगे तो ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम हमारे पास रिमूव हो जाएगा. लाइक के इसकी अगर वैल्यू माइनस +2 है और डाउनवर्ड वाली -2 है, तो माइनस इंटू पॉजिटिव आप उसमें एक दूसरे को नैलिफाई करेंगे, तो प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन मे बी मिनिमाइज. What are the main, what does the serial correlation, ये क्या होता है, इसकी सर्वल रीजन क्या होती है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इसकी रीजन होती है वो इनर्शिया होती है. What do you mean by inertia? We can say that in this example that the GDP of data we taken from different entire series, time series, or different time values of data, we can collect the GDP data of one variable with different time period like 1981, 1982, 1983, 1984. इस तरह का हमारे पास ये टाइम है और साथ हम जीडीपी का एक एलिमेंट ले रहे हैं कि 1981 में हमारी जीडीपी 5% है, 6 है, 7 है, 8 है. तो अब जब जीडीपी का डाटा हम डिफरेंट टाइम सीरीज में लेते जाएंगे तो हमारे साथ एक एरर टर्म भी साथ मूव होती रहेगी, और वो अगर एरर टर्म 1981 की ओवरलैप करे 1982 को, 1982 की ओवरलैप करे 1983 की को, तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन. वी कैन डिटेक्ट द ऑटो कोरिलेशन फ्रॉम दिस. सेकंड जो इसका ऑटो कोरिलेशन जो है, वी कैन चेक दैट दिस इज द स्पेसिफिकेशन बायस. Specification bias means कि we have a demand function y is the function of beta 1 plus beta 2 x2t plus beta 3 x3t plus beta 4 x4t. Here the y is the demand function, x2 is the price of like we take a meat for our consumption, yt is the demand of meat, is the function of quantity of demand of beef, is the function of x2t is the price of beef, x3 is the price of pork, and x4 is the price of pork, and f3 is the consumer income. So if we exclude the variable of price of pork from our data, तो ये प्राइस ऑफ पोक जो है वो हमारे इस एरर टर्म जो स्टोकास्टिक टर्म है, एरर टर्म है, इसके अंदर चला जाएगा, ये इसमें ऐड अप होता जाएगा. तो प्राइस ऑफ पोक जो है वो ऐड अप हो जाएगा म्यू में, एंड दिस एक्सटेंड द प्राइस ऑफ पोक अफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ बीफ. So the error or disturbance term V will be reflect the systematic pattern. This is called the autocorrelation. तो जब ये वाला टर्म स्टूडेंट इसमें चला जाएगा, ये वाला टर्म इसके में जाके, तो ये एक वी टर्म बन जाएगा. यूटी था ना, इसमें हमने ये भी शामिल कर दिया, ये एरर इसमें शामिल हो गया, तो उसकी वजह से हमारे पास मॉडल ये रह गया. तो ये जो ये वेरिएबल था, वी एक्सक्लूड दिस वेरिएबल ओवर एक्चुअल मॉडल है ना, वी इंक्लूड दिस वेरिएबल ऑन द एरर टर्म. तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास से ये जो इसकी रिफ्लेक्शन तो शो हो रही होगी कि हम जो है x4 जो है प्राइस ऑफ पोर्क को भी हम इस्तेमाल करते हैं पोर्क को, लेकिन ये हमारे पास एरर टर्म में इसकी रिफ्लेक्शन हो रही होगी, और
जब ईयरली हम डाटा को लेते जाएंगे लाइक 1981 82, तो ये एरर टर्म हमारे पास बढ़ती हुई नजर आएगी और इसकी रिफ्लेक्शन हमारे पास आउटपुट की सूरत में हमें नजर आएगी. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन. So you can here see that the specification bias are incorrect function form. Suppose that the true and correct model in the cost output study is that the marginal cost is equal to beta 1 plus beta 2 output plus beta 3 output का square plus mu. So, but we fit the following model. Marginal cost is equal to alpha 1 plus alpha 2 output plus v. So, ये जो output का square है basically, ये स्टूडेंट, ये आउटपुट का स्क्वायर बेसिकली हमने आउटपुट पहले लिया हुआ है, उसका जब स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा कि ये हमारे डाटा के अंदर डिस्टरबेंस करेगा. इस आउटपुट के स्क्वायर को हम जो है एरर टर्म के अंदर डाल देंगे, जो हमारी टर्म यू आई प्लस आउटपुट का स्क्वायर इज वी आई, तो ये वेरिएंस बन जाएगा. तो ये हमारा एरर टर्म वी बन जाएगा क्योंकि हमने एक और वेरिएबल एरर टर्म में इंक्लूड कर दिया. तो ये हमारे पास ये हमारा मॉडल फिट आएगा क्योंकि आउटपुट और आउटपुट का स्केल लेंगे तो ये आपस में वेरिएबल एक दूसरे के साथ overlap करेंगे. The overlapping of one variable with other variable, this is called the problem of multicollinearity, which we will discuss in next class. तो हमने वो ये जो आउटपुट का स्क्वायर है इसको मल्टीकोलिनियर से बचाने के लिए इसने हमने इस वेरिएबल को एरर टर्म के अंदर डाल दिया. जब एरर टर्म के अंदर डालेंगे तो हमारी एरर टर्म पहले यू आई थी, अब वी आई बन गई. वी आई क्योंकि यू आई प्लस आउटपुट का स्क्वायर भी इसमें आ गया तो ये वी आई बन गई. तो the marginal cost curve corresponding to true model is shown in figure 12.2 along with the incorrect linear cost function. As the figure 12.2 shows that between point A and B, the linear marginal cost curve will be consistently overestimate and true marginal cost, whereas behind this point it will be consistent underestimate the true marginal cost. This result is to be expected because the disturbance as V is in fact equal to output का square plus mu I का square, hence will catch the systematic effect of output का square term on the marginal cost. In this case, the VI is reflect autocorrelation because of use of incorrect functional form. So देखें कि यहाँ पे क्या हुआ कि स्टूडेंट हमने ये एक फंक्शनल फॉर्म हमारी एक्यूरेट ये थी कि हम ये लेते मार्जिनल कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट. जब हमने उसका स्क्वायर भी ले लिया और बाद में इस वेरिएबल को हमने क्या किया कि एरर टर्म के अंदर डाल दिया, तो ये वेरिएबल बेसिकली इस आउटपुट को रिफ्लेक्ट करेगा और जब जो जो हम नेक्स्ट ईयर का डाटा लेते रहेंगे ये वेरिएबल हमारे पास आउटपुट का ये जो एरर टर्म है वो साथ चलता जाएगा और एरर टर्म साथ चलता जाएगा और इसके अंदर आउटपुट का स्क्वायर भी है, which is we can say that this is the incorrect functional form of the model. और ये जो ऑटो कोरिलेशन होगा बिकॉज ऑफ यूज ऑफ इनकरेक्ट फंक्शन फॉर्म. इस ये देखें ना आउटपुट का जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे एरर टर्म के अंदर है स्क्वायर, तो उसकी वजह से हमारा आउटपुट एरर टर्म जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगा करंट ईयर को प्रीवियस ईयर के साथ. इनका जो एरर टर्म होगा वो आपस में रिफ्लेक्ट करेगा. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन. Here we can say that the marginal product cost function and output. तो A से below जो है वो हम कह रहे हैं underestimate and A से above overestimate. This is basically the problem of autocorrelation because we can took that yt is equal to alpha plus alpha 1. हमने लिया output alpha 1 output प्लस अल्फा 2 आउटपुट का स्क्वायर. जब जो स्क्वायर ले लिया तो हमारा जो ये फॉर्म बन गया वो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया और उस स्क्वायर को हमने दूसरा क्या किया कि उसको हमने एरर टर्म के अंदर डाल दिया. आउटपुट का स्क्वायर जब एरर टर्म के अंदर जाएगा म्यू प्लस आउटपुट का स्क्वायर, तो ये हमारे पास जब होगा इक्वल टू वी टी, तो ये एरर टर्म के अंदर और ये डिस्टर्बेंस टर्म अलोंग द टाइम जो है वो इसके साथ कंटिन्यू रहेगी और जब कंटिन्यू रहेगी तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन इन आवर मॉडल. मैनिपुलेशन ऑफ डाटा. तीसरा जो रीजन है कि ऑटो कोरिलेशन किस वजह से होता है
In empirical analysis, the raw data are often manipulated. For example, in time series regression involve a quarterly data, such as the data are usually derived from the monthly data by simply adding the monthly observation and divided by 3. So this average introduce averaging by simply adding the 3 months. So the averaging introduce smoothness in the data by damping the flexion in monthly data. Therefore, the graph plotting the quarterly data look like a smoother than month data. And this smoothness may be itself lent to be the systematic pattern of disturbance that this may be इंट्रोड्यूसिंग द ऑटो कोरिलेशन। ये स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हम एक मंथली डाटा हमारे पास 12 ईयर है, एक 1 ईयर का मंथली डाटा है, लाइक डाटा ऑफ 1 मंथ 2 3 4 एंड 5। इसको अगर हम क्वार्टरली डाटा में बदलने की कोशिश करेंगे तो वी कैन डिवाइड दिस डाटा इनटू 4। तो जब 4 में इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जब 4 में डिवाइड करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास वो डाटा हमें स्मूथ नजर आएगा, और स्मूथ डाटा नजर आने की वजह से हमारा एरर टर्म जो स्टोकास्टिक टर्म है, एरर टर्म है, वो भी हमें स्मूथ लगेगा। जब स्मूथ लगेगा तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। यहाँ पे भी ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम हमें होगा, क्योंकि हमारी डाटा में स्मूथनेस आ जाएगी, वेरिएबल में स्मूथनेस आ जाएगी, तो उसकी वजह से हमारा जो डिस्टरबेंस टर्म है वो भी स्मूथ हो जाएगा, वो भी कोरिलेट करेगा विद प्रीवियस डिस्टरबेंस टर्म। जब एक दूसरे के साथ ये एरर टर्म को रिलेटेड करेंगे तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। नाउ लैग्स एक वन अनदर प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन का जो कॉन्सिक्वेंस वो कैसे आएगा, वो लैग्स की वजह से भी आएगा। बाद औक़ात हम क्या करते हैं कि डाटा के अंदर लैग्स डाल देते हैं, जैसे कंजम्पशन है ना, तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2 इनकम प्लस बीटा 3 कंजम्पशन t-1 प्लस। ये बेसिकली टाइम सीरीज डाटा में हम लैग डाल रहे होते हैं, जिस तरह ये वाई टी है तो हम कहते हैं कि वाई t-1 प्रीवियस लैग डाल देते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम होती है, तो हम इनको आइट्रेट करने के लिए लैग्स डालते हैं। इन द टाइम सीरीज डाटा रिग्रेशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन इनकम, इट इज नॉट uncommon to find that consumption expenditure in current period depend among the other things on consumption expenditure of previous। तो देखें इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम ले रहे हैं, तो वो अगर हमारे पास मुख्तलिफ ईयर का डाटा लाइक 81 है, 82 है, 83 है, 1983, तो प्रीवियस ईयर की कंजम्पशन जो होगी वो करंट के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही होगी कि जो प्रीवियस ईयर में हम कंजम्पशन करेंगे, तो प्रीवियस ईयर में कंजम्पशन करने की वजह से वो करंट ईयर में भी उसका इफेक्ट आ रहा होगा। तो इट्स मीन दैट कि हमने डाटा का लैग डाला है, और जब लैग डालने की वजह से हमारे डाटा के अंदर ऑटो कोरिलेशन आएगा। लाइक ईयर कंजम्पशन ये टाइम पीरियड टी है, तो यानी करंट ईयर की कंजम्पशन वो डिपेंड कर रही है हमारी इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर की कंजम्पशन के ऊपर, जो हमारी लास्ट ईयर की कंजम्पशन हुई है, जो 1980 में हुई है, और ये अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1981 की। As the regression side 12.1.7 known as the auto regression because of one explanatory variable is lag value of डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखें ये हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग हमने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के लैग में, डिपेंडेंट वेरिएबल कंजम्पशन का लैग हमने इंडिपेंडेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में डाला हुआ है, तो जिसकी वजह से भी ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। The rationale for the model such as 12.1.7 is simple. The consumer do not change their consumption habit readily for the psychological, technological or institutional reason. Now, if we neglect the lag term in 12.1.7, the resulting error term will be reflect the systematic pattern due to influence of lag consumption on current consumption। अगर हम इस ये वेरिएबल हम अपने मॉडल के अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे, इसको एरर टर्म के अंदर डाल देंगे, लाइक कि हम कह दें कि कंजम्पशन प्लस यूटी को हम वीटी डाल दें, तो ये जो हमने कंजम्पशन का एरर लैग लिया है वो देखिए कंजम्पशन करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की कंजम्पशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है।
और अगर हम इस कंजम्पशन को जो प्रीवियस ईयर है उसको अगर हम इस अपने मॉडल में शामिल नहीं करते हैं बल्कि इसको एरर टर्म में डाल देते हैं, तो इट्स मीन दैट दिस एरर टर्म इज रिफ्लेक्ट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर विद करंट। तो ये हमारे पास एक यानी इन्फ्लुएंस नजर आएगा लैग एरर टर्म का। दिस इज ये भी आल्सो प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन विद करंट एंड प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे भी हमें ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम नजर आएगा। ये था कि ऑटो कोरिलेशन की रीजंस क्या होती हैं, किस किस की वजह से जो है ऑटो कोरिलेशन वो एग्जिस्ट करता है इन ओवर मॉडल में। लाइक वी कैन सी हियर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। अब हम ये स्टूडेंट चेक कर रहे हैं कि ऑटो कोरिलेशन हो तो गया हमारे मॉडल में, ये रीजन हुई उसकी वजह से हमारे मॉडल के अंदर ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर गया। अब इसकी वजह से हमारे मॉडल में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे मॉडल के अंदर ऑटो कोरिलेशन की वजह से क्या क्या खराबियां पैदा हुई हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस, विच कॉन्सिक्वेंस द ऑटो कोरिलेशन, यानी which are the main consequence that the autocorrelation exists in our data and how it uh, 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 we can see simply that how it yani destroyed our model and how can this autocorrelation react over model values। तो कि कैसे ऑटो कोरिलेशन तो हमारे मॉडल में आ गया, वी नो दैट these are the detect we say that this is the type of autocorrelation exists in our model. But how this autocorrelation react in our estimated values or variables. So under the both heterozygosity and autocorrelation, the usual OLS estimator, although linear, unbiased, and system asymptotically or large sample normally distribute are no longer minimum variance among all the linear unbiased estimators. In short, they are not efficient relative to other linear unbiased estimators. तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि हेट्रोसाइक्डोसिटी के अंदर भी जब हेट्रोसाइक्डोसिटी का एलिमेंट हमारे एरर टर्म में हमारे मॉडल में आ जाएगा तो उसकी वजह से हमारा मॉडल जो है वो एक तो एफिशिएंट नहीं रहेगा और अनबायस हो जाएगा। वो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो टी की वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, स्मॉल हो जाएंगी और हमारा एरर टर्म जो है वो लार्ज हो जाएगा। जब एरर टर्म को बीटा के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारी टी की वैल्यू लेस आएंगी। जब टी की वैल्यू लेस आएंगी तो इट्स मीन दैट कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है लेस देन एस्टिमेटेड वैल्यू वो एक्सेप्ट एच नॉट। तो वो हमारा मॉडल जो है उसका ना टी वैल्यू अच्छी आएगी ना एफ वैल्यू। टी वैल्यू इज द वी कैन से दैट the level of significance of one variable and f value is the level of significance of overall model। तो जब हमारे पास टी वैल्यू भी कम आएगी एफ वैल्यू भी मॉडल की कम आएगी तो इसका मतलब ये है कि दिस मॉडल इज नॉट गुड फॉर ओवर estimation results। So in short, they are not efficient relative to other linear and unbiased estimate। Put the difficulty, they may be the blue not blue। तो हमारा बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर जो हमने पहले क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन की assumptions पढ़ी थी वो हमारे पास ये ब्लू एस्टिमेटर नहीं रहेगा। एज द रिजल्ट यूजुअली टी एफ एंड का स्क्वायर आर नॉट वैलिड। तो ना हमारी टी की वैल्यू वैलिड रहेगी ना एफ की वैल्यू वैलिड रहेगी ना का स्क्वायर कोई भी डिस्टर्बेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी ना टी डिस्ट्रीब्यूशन ना एफ डिस्ट्रीब्यूशन ना का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी वैलिड रहेगी ड्यू टू ऑटो कोरिलेशन इन ओवर मॉडल। So the relationship between wages and productivity. The plotting the data on the y and x, we obtain the figure in 12.7 since the relationship between the real consumption and the labor productivity is expected to be positive. It is not surprise that the two variables are positive related। यानी हमारी जो रियल वेजेस है और रियल कंजम्पशन है, यानी जब लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी
तो उसको कंपनसेशन भी बढ़ जाएगी। यू नो दैट प्रोडक्टिविटी एंड कंपनसेशन आर पॉजिटिव रिलेटेड टू इन ईच अदर। हम देख रहे होते हैं कि प्राइवेट जो फर्म्स होती हैं वहां पे वर्कर की प्रोडक्टिविटी देखी जाती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर एंड द उसकी जो उसको कंपनसेशन वेज मिल रही होती है उसका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। What is the surprising is that the relationship between two almost linear। तो ये देखें यहाँ पे ये अगर हमारे पास y जो है वो हमारे पास अगर रियल कंजम्पशन है कंपनसेशन है और ये लेबर की प्रोडक्टिविटी है x, तो इनका जो रिलेशनशिप आपस में शो हो रहा है वो पॉजिटिव है। ये टाइम सीरीज टाइम के लिहाज से डाटा है और ये स्मूथ जा रहा है। जब ये स्मूथ जाएगा तो इट्स मीन दैट अगर इनका हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमारे पास यानी लेबर की कंपनसेशन है और ये प्रोडक्टिविटी है, तो इसका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो रहा है। पॉजिटिव मीन देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप इफ वी इंक्रीज द लेबर वेज कंपनसेशन इट प्रोडक्टिविटी इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की वजह से हमारी फर्म की जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट एंड लेबर कंजम्पशन कंपनसेशन। नाउ although there is some hints that high the value of productivity relationship between the two may be slightly non-linear, therefore we decide to estimate the linear regression model। ये हमने मॉडल एक एस्टिमेट किया, तो ये देखें इसका स्टैंडर्ड एरर 1.9 आया है और बीटा 1 और बीटा 2 का स्टैंडर्ड एरर ये आएगा। टी वैल्यू इसकी 15 आ रही है और 29 आ रही है। आर स्क्वायर 95 है, यानी 95% डी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन द डिपेंडेंट वेरिएबल। डार्बन वाटसन जो है वो 0.1 और ये आ रहा है। वेयर द डी इज द डार्बन वाटसन स्टोकास्टिक विच इज डिस्कस शॉर्टली। अब जो डार्बन वाटसन टेस्ट है बेसिकली ये डिटेक्ट करता है कि हमारा ऑटो कोरिलेशन कितना है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.1। तो अगर हम इसी मॉडल का अगर एल एन इसके साथ लगा दे, लॉग लिनियर मॉडल, दिस इज सिंपल मॉडल एंड दिस इज लॉग लिनियर मॉडल, इसका हमारे पास स्टैंडर्ड एरर देखें कितना कम आ रहा है और ये और हमारी टी की वैल्यू ये यहाँ तक बढ़ गई है। तो आर स्क्वायर जो है वो 97% है। डार्बन वाटसन हमारे पास पहले आ रहा था 0.1 और ये 0.15 और सिग्मा स्क्वायर ये। For discussing purpose, we will call that 12.5.1 and 12.5.2 are wages productivity regression model। So quantitatively both the model given the similar result, दोनों हमें एक जैसे रिजल्ट दे रहे हैं। In both cases the estimated coefficient are highly significant। ये देखें t की वैल्यू यहाँ पे भी ज्यादा है, इसमें भी 29 है और 15 है और इधर भी टी की वैल्यू 19 और 37 है। बोथ मॉडल आर हाईली सिग्निफिकेंट। हमारी ओवर टी वैल्यू इज ग्रेटर देन tabulated value, calculated value is greater than tabulated value, both model में highly significant as the indicate by the high t values in this linear model। if the index of productivity goes index of productivity goes up by about 0.7 unit in the log linear model, the slope of coefficient are being elastic, slope or coefficient being elastic। So why we find if the index of productivity goes by 1%, on average the index of real consumption is goes by 0.67%। In last model में we have discussed that we have discussed that we have discussed that कि अगर 1% हमारे पास index of product goes by 1%, on average the index of
productivity goes by 1% on average, the index of real compensation goes by 0.7। यानी 1% अगर हम लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से हमारे पास 0.67% जो है वो हमारी कंपनसेशन बढ़ जाएगी, यानी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से। So the real consumption goes by. However, compensation, the reliable are the result are 12.5.1 and 2. ये बहुत reliable है. If there is autocorrelation, as stated the previously, if there is autocorrelation, the estimated standard error are biased, as the result of which the t values and ratios are unreliable. So यहाँ पे देखें कि अगर ऑटो कोरिलेशन होता तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमारे बहुत ज्यादा बढ़ जाते, बायसनेस हो जाता। अब यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड एरर बहुत कम है, तो इसका मतलब ये है हमारी टी की वैल्यू रिलायबल है। अगर स्टैंडर्ड एरर बढ़ जाता तो हमारी टी की वैल्यू इनएफिशिएंट होती और डर्बन वाटसन की हमें वैल्यू शो रही होती, और ये हमारे पास प्रॉब्लम होता ऑटो कोरिलेशन का। डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन को कैसे हम डिटेक्ट करेंगे? सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। There are various ways for examining the residual. We can simply plot them against the time, the consequence plots, and we have done in figure 12.8, which shows that the residual obtained from wages productivity regression 12.5.1, the value of these residual are given in table 12.5 along with the data। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये हमें शो कर रहा है कि ये हमारे पास रेजिड्यूल है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है और ये एक्चुअल रेजिड्यूल है। जब हम इस डाटा को एस्टिमेट कर रहे हैं तो हमारी रेजिड्यूल की टर्म ये देखो ये बड़ी बड़ी लग रही है, ये बड़ी बड़ी ये इंक्रीज। और जो स्टैंडर्डाइज है, जब हमने इसमें से इसका स्टैंडर्डाइज दूसरा मॉडल रन किया जो एलएन की शेप में था और एक सिंपल मॉडल था जो एक्चुअल मॉडल था, तो वो उसका जो एरर टर्म है वो नीचे आ रहा था। तो इनका जो ये जो एरर टर्म का डिफरेंस आ रहा है बिटवीन दिस, ये डॉटेड लाइन में और जो जो सॉलिड लाइन है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है, बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन इन ओवर डाटा। ये हमारे पास ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम है जिसको हम ग्राफिकली एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास एरर टर्म जो आ रहा है ये सॉलिड लाइन में, ये एक्चुअल जो मॉडल हमने एस्टिमेट किया लाइक दिस, ये जो एक्चुअल मॉडल है इसका स्टैंडर्ड एरर है, और ये एरर टर्म है जो एस्टिमेटेड, यानी जो हमने स्टैंडर्डाइज मॉडल बना के एलएन लगा के किया है। तो इनका जो डिफरेंस आएगा दिस इज कॉल्ड द ऑटो कोरिलेशन इन ग्राफिकल शेप। सो हमारे पास देखें द रेजिड्यूल एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड एंड लैग। तो ये हमारे पास रेजिड्यूल है, यानी ये एक्चुअल रेजिड्यूल 1 है और ये इसका लैग है और ये स्टैंडर्ड रेजिड्यूल है। तो जब इनका हम डिफरेंस ले रहे हैं, ये लैग का रेजल्ट है हमारे पास, ये एक्चुअल है और ये स्टैंडर्ड का है। इसी तरह ये टाइम सीरीज डाटा है 1960 से हमने लिया हुआ है 1998 तक। तो ये हमारे पास से यानी इनका यानी ये इसका स्टैंडर्डाइज है जो हमने एलएन लगा के लिया हुआ है। ये रेजिड्यूल जो है वो उसका एक्चुअल है जो मॉडल को हमने एस्टिमेट, ये इसका लैग लेके किया हुआ है। तो यहाँ से हमें ग्राफिकली हम देख सकते हैं कि ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम, ये जो एक्चुअल में से ये जो स्टैंडर्ड को माइनस करेंगे, जो दरम्यान में हमारे पास टर्म बच रही है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड द ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम। नाउ alternatively we can plot the standardized residual against the time, which is are also shown in figure 12.8 and table 12.5. The standard residual are simply the residual ut divided by the standard error of this, that is we can ut over sigma. Notice that ut and sigma are measured in a unit which is regressant, y is measured. So the value of standardized residual will be therefore be pure number divided by number measure and can be compared with the standardized residual of the other regression. Moreover, the standardized residual like u hat has a zero mean and approximately unit variance, यानी इसका constant variance है, mean 0 है, जो standardized हमने मॉडल एस्टिमेट किया और जो एक्चुअल मॉडल है उसका
ये एरर मीन और वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है। इन large sample mu I over sigma approximately normally distributed zero mean and unit variance mean constant. For our simple sigma square is 2.6. Examining the time consequence plot in the 12.8, and we observe that both the mu hat and the standardized mu hat exhibit a pattern in figure 12, suggesting that para mu t is not random. So here you can see that यही मैंने आपको चीज बताई है कि हमारे पास ये एक्चुअल मॉडल है और ये जो सॉलिड लाइन है और ये जो दूसरी लाइन है ये हमारे पास डॉटेड लाइन है, ये स्टैंडर्डाइज जो हमने मॉडल बनाया है जिसका मीन जीरो है, वी कैन से मीन इज जीरो एंड वेरिएंस इज कांस्टेंट। तो जब इनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास जो डिफरेंस शो कर रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। नाउ so here we to see that differently we can plot the mu t and mu t lag का, और इसका जब हम रेजिड्यूल कर रहे हैं, ये लैग हमने लिया हुआ है, ये दूसरा रेजिड्यूल है, तो ये इनके दरमियान में जो एरर टर्म का हमारा सीरीज आ रहा है वो इस तरह पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। ये कौन सा ऑटो कोरिलेशन है? पॉजिटिव है, क्योंकि ये अपवर्ड स्लोप है और ये पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन की we can say. To see this difficulty, we plot the ut against ut minus 1, and that is plot the residual at time t against their value t minus 1, kind of empirical test of the following. तो यहाँ पे हमारे पास ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। नाउ वी मूव अनदर टेस्ट, जो सेकंड टेस्ट है वो रन टेस्ट है। अब ये पहला टेस्ट था जो हमने ग्राफिकली हमने आपको बताया कि ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। सेकंड टेस्ट जो है वो रन टेस्ट है। टू एक्सप्लेन द रन टेस्ट, लेट वी सिंपली नोट द साइन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ द रेजिड्यूल। हम रिग्रेशन को रन करेंगे और वहां से रेजिड्यूल निकालेंगे और रेजिड्यूल में से हम देखेंगे कि पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं फ्रॉम द वेज प्रोडक्टिविटी रिग्रेशन विच आर गिवन इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस। These are the negative residual and these are the positive and these are the regular. इनको हम गिन लेंगे। Thus there are 9 negative residual and 21 are positive residual and followed by 10 negative residual for the total 40 observation। 40 हमने observation ली है, जिसमें से 21 जो है 21 पॉजिटिव रेजिड्यूल है, 9 नेगेटिव है और फिर 10 नेगेटिव है। ओवरऑल 19 नेगेटिव है और हमारे पास 21 जो है पॉजिटिव रेजिड्यूल। टोटल ऑब्जर्वेशन 40 है। We now define the run as the uninterpreted sequence of one symbol or attribute such as positive or negative. We further define that the length of run as the number of the element in it. In consequence, there are 3 run and number of run of 9 minutes of length is 9 and run of 21 plus length of 21 and run of 10 minutes जो रन है वो, यानी 3 दफा हमने डाटा को रन किया और हमारे पास ये रेजिड्यूल है। फॉर बेटर विजुअल इफेक्ट वी हैव प्रेजेंट द वेरियस रन इन पैरेंथेसिस। तो ये देखें, ये रन टेस्ट है। इसमें हमने क्या किया कि ना टोटल नंबर ऑफ रन जो थे n1 और n2 के वो हमारे पास 40 थे, n नंबर ऑफ पॉजिटिव सैंपल रेजिड्यूल n1, नंबर ऑफ नेगेटिव सैंपल रेजिड्यूल n2 और आर जो है वो नंबर ऑफ रन है, हमने कितनी दफा 3 दफा रन किए। तो अंडर द नल हाइपोथेसिस दैट सक्सेसिव आउटकम है रेजिड्यूल are independent or assume to n is greater than 10, n is 2 is greater than 10 and number of run ascend to total। ये फार्मूला है, इस फार्मूले में डालेंगे इसका मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रन जो है 2n1 n2 ओवर n प्लस 1, ये इसका मीन है और ये वेरिएंस का फार्मूला है 2 इंटू n1 माइनस n1 n2 इंटू 2 n1 n2 माइनस n डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर n माइनस 1। इनमें ये जो जितने भी n1 हमारे पास अगर टोटल 40 रन है, n1 हमारे पास 10 है, n2 21 है, पॉजिटिव रन 21 है, नेगेटिव रन 10 है। तो इनमें इस फार्मूले में डालेंगे तो हमारे पास मीन और वेरिएंस n is equal to n1 plus n2 if the
null hypothesis of randomness is sustainable. The following properties of normal distribution we should be expect probability of expected value of run minus 1.96 जो हमारा रिटर्न आया रन आए इंटू एक्सपेक्टेड ये टू टेल टेस्ट हमारे पास हमारी वैल्यू है 0.95 so there is the probability of 95% that preceding the interval will include the R in their rules decision rules do not reject the null hypothesis of the random with 95% confidence if number of runs lies in the preceding uh, uh, confidence interval. Reject the null hypothesis if R is outside this and you can choose from this. तो यहाँ पे हमारे पास वही हाइपोथेसिस स्टूडेंट बनेंगी एच नॉट और एच वन हम कहेंगे कि एच नॉट नो ऑटो कोरिलेशन और एच वन ऑटो कोरिलेशन है तो अगर हमारे पास हम जब ये रन कर लेंगे तो हम इस तरह की एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और हम कहेंगे कि ये यहाँ तक ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये 95% है हम 95% एक्यूरेट है और ये जो बाकी हमारे पास है वो 5% है इफ ओवर कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू है हम कहेंगे एच नॉट रिजेक्ट यानी नो ऑटो कोरिलेशन अगर इस रीजन के अंदर ये रन की वैल्यू लाई करेगी 95 के अंदर यानी 95% के अंदर लाई करेगी तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे हम कहेंगे कि नो ऑटो कोरिलेशन इसमें ऑटो नहीं है और अगर ये इसके अंदर लाइज नहीं करेगी बल्कि इस रीजन और इस रीजन में लाइज करेगी तो इसका मतलब ये है कि जो हमने 5% लिया हुआ है उसमें लाइज कर रही है तो हम कहेंगे कि एच नॉट रिजेक्ट नहीं है बल्कि एच नॉट एक्सेप्ट है ये ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम है और ये ऑटो कोरिलेशन इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आकर कर रहा है अंडरस्टैंड So you can see here that तो हमारे पास है हमारे पास इसको ऑटो कोरिलेशन को सेकंड मेथड है हमारे पास ऑटो कोरिलेशन का वो ये है कि हमारे पास वी नो दैट n1 नंबर ऑफ मिनट्स इज 19 n2 इज नंबर 21 एंड r इज 3 तीन दफा हमने रन किया है जब इसमें वैल्यूज डाली ये मीन की वैल्यू हमारी 20.95 आ गई वेरिएंस की वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 9.69 ये हमारी वैल्यूज आ गई और हमारे पास इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमें ये हमारे वेरिएंस की वैल्यू है ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो 3 तो दीज वैल्यूज को हम क्या करेंगे फिर हमारे पास दे देखें कि हमारी एक्सपेक्टेड R प्लस 1.96 जो टी वैल्यू है उसकी वैल्यू लाइज कर रही है 20.95 प्लस माइनस 1.96 जो हमारी R यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट होके आई है वो ये है तो ये 20.95 और 6.12 ये हमारे पास है और 14.86 और 27. Obviously this interval does not include 3. Hence we can reject the hypothesis that the residual is over wages productivity regression are random. In 95 in this word the residual is outside the auto correlation. As a general rule, if there is positive autocorrelation, the number of rungs will be fewer, whereas if the negative autocorrelation, the number of rungs will be minimum. तो पॉजिटिव होगा तो नंबर ऑफ रंग कम होंगे और नेगेटिव होगा तो नंबर ऑफ रंग क्या होंगे ज्यादा होंगे तो this is the problem of autocorrelation in our data. The second task जो हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे वो है डर्बन वाटसन टेस्ट एंड डर्बन वाटसन टेस्ट जो होता है d इज इक्वल टू ut माइनस 1 एरर टर्म का करंट ईयर एरर टर्म उसका लैग का स्केयर लेंगे और डिवाइडेड बाय लैग इसका होल स्केयर लेके लैग का स्केयर लेंगे तो अगर हमारे फर्स्ट कोई रिग्रेस एक्स ऑन वाई जब हम ये रिग्रेशन को रन करेंगे y इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 xt प्लस ut तो ये हमारे पास एरर टर्म आ गया 1 5 3 -5 और -4 जब इसका एरर लैग लेंगे तो एक वैल्यू हम छोड़ देंगे
और 1 यहाँ से शुरू होगा 1 5 3 और -5। जब इनका यू टी माइनस यू टी माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 में से 1 माइनस किया तो 4, 3 में से 5 माइनस किया -2, -8 और माइनस, इनका जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा। और इसका यू टी का सिंपली स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 9 का 81, 3 का 9 और 5 का 25 16। तो ये हमारे पास यू टी ऐड का स्क्वायर आ गया है। ये हमारे पास आ गया यू टी माइनस यू, इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, 6 वाली वैल्यूज इसमें पुट करेंगे ऑन द डाटा। तो ओवर result is 1.12। The regression model includes the intercept and if it is not private. As the case of regression, although the origin, it is essential to return the regression include the intercept and in the model RFS. हम इस तरह residual sum of scale लेंगे। The explanatory variable x are non-stochastic or fixed in repeated samples. The disturbance U are also generated by the first order autocorrelation. U is equal to rho into UC minus 1 plus UC. Therefore, it can be used to suggest the higher autocorrelation. The other term UT is assumed to be normally distributed. ये कुछ credentials है, ये हमारे पास होनी चाहिए कि हम जो है residual लेंगे, regression को run करेंगे explanatory variable से, उसके बाद हम इसका लैग लेंगे। यूटी आर जनरेटेड बाई रो इंटू यूटी, यानी करंट ईयर का जो एरर टाइम होगा न्यू टी होगा उसको प्रीवियस ईयर लैग के साथ रन करके हम रो की वैल्यू निकालेंगे। एरर टाइम यूटी वैल्यू टू बी ध्यान देना, हम कहेंगे एरर टाइम या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। The regression model do not include the lag value as a dependent variable. If the lag value as one of the explanatory variables, thus that is applicable for this model. So autocorrelation model will be steady interface. There is no missing observation in the data, thus overweighting productivity regression for period 1959-19. It is observation for shows that there are missing from the region. The Darwin doctor made no allows for further missing observation. तो जब डाटा के अंदर ये डर्बन वाटसन की हमारी वैल्यू आ गई है नहीं ये वाली, तो अगर डाटा के अंदर मिसिंग होगी तो ये फिर वहां पे डर्बन वाटसन हमारा टेस्ट जो है वो हमारे लिए लाइव नहीं करेगा। फिर हमें जो है ना एक और टेस्ट निकालना पड़ेगा जिसको डर्बन वाटसन टेस्ट करेंगे। तो here we can see that इसकी अगर डेरिवेशन की जाए डाटा में d is equal to ut minus ut hat minus 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ut का स्क्वायर। जब हम इसका ये इसके ऊपर पे जो है ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। वही जो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय यूटी का स्क्वायर। सिंस यूटी स्क्वायर यूटी माइनस 1 डिफर्स फ्रॉम वन ऑब्जर्वेशन दे आर अप्रॉक्सीमेटली normally equal to ut is approximately equal to ut minus 1 ut का स्क्वायर ut प्लस ut का हो सकता है माइनस 2 ut माइनस 1। ये इनको ऐड अप करेंगे तो 2 यूटी आ जाएगा डिवाइडेड बाय यूटी का स्क्वायर। किसी इनमें से कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यूटी इंटू यूटी माइनस 1 और यूटी तो 2 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय यूटी का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे की वैल्यू आएगी जो हमने अटेंशन में कहा है कि वो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रो। ये फिर रिग्रेशन यूटी माइनस 1 का स्क्वायर करें इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस रो हैट। और रो की वैल्यू जो होगी वो -1 से लेके रो द वैल्यू ऑफ रो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो पुट द रो वैल्यू -1 1 और 0। अगर रो की वैल्यू -1 होगी तो डार्विन वाटसन की वैल्यू 4 होगी। रो की वैल्यू +1 होगी तो डार्विन वाटसन की 0 होगी। रो की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2। तो here we can say this is, इसको हम फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि हमारे पास इफ रो इज -1 विच मीन दैट परफेक्ट नेगेटिव ऑटो, रो इज 1 विच इज कॉल्ड द परफेक्ट पॉजिटिव ऑटो, नो रो इज 0 नो ऑटो। जब रो की वैल्यू 1 होगी
1 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये हमारे डर्बन वाटसन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डर्बन वाटसन रो की वैल्यू 1, डर्बन वाटसन की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 मीन इफ डर्बन वाटसन वैल्यू इज 0 मीन रो की मान विच इज परफेक्ट नेगेटिव ऑटो हो जाएगा। अगर रो की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट पॉजिटिव ऑटो आ जाएगा, और रो की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो नो ऑटो। तो रो की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डर्बन वाटसन की वैल्यू 4 आएगी विच इज परफेक्ट नेगेटिव ऑटो। रो की वैल्यू जो है वो हम 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा मीन परफेक्ट पॉजिटिव ऑटो। रो की वैल्यू डी की वैल्यू 2 पुट करेंगे, डर्बन वाटसन 2 आएगा जब हमारे पास रो की वैल्यू जो होगी वो 0 पुट करेंगे, नो ऑटो। तो ये हमने कैलकुलेट प्रीवियसली किया हुआ है ऑटो कोरिलेशन 1.12। 1.12 जो है हमारे पास वो 0 से ग्रेटर और 2 से कम आ रहा है। इट्स मीन दैट कि ये हमारे पास परफेक्ट पॉजिटिव ऑटो है। और अगर ये 4 तक चला जाता तो परफेक्ट नेगेटिव होता है, अभी परफेक्ट पॉजिटिव है। और अगर इसकी वैल्यू 0 होती तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव ऑटो है, और अगर 2 अराउंड इक्वल टू 2 हो जाता तो ये नो ऑटो है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1.12 आ रही है। इट्स मीन दैट दिस इज परफेक्ट नेगेटिव ऑटो, परफेक्ट पॉजिटिव ऑटो। ये ऑलराउंड इक्वल टू इसके बराबर ही है, 2 से कम है। तो ये परफेक्ट पॉजिटिव ऑटो है। अगर 4 होता तो परफेक्ट नेगेटिव ऑटो होता। तो दीज आर द ऑटो कोरिलेशन वी कैन कैलकुलेट हियर। ऑटो कोरिलेशन जो है वो हमारे पास इफ डी वैल्यू इज क्लोजर टू 2, फॉर इंस्टेंस 1.9, 1.2, 2.52, so on mean no auto correlation। अगर 1.98 आता, 1.9 इस तरह का आता तो ये नो ऑटो कोरिलेशन था। ये हमारा 1.1 आया है ना, 1.2। So here is we can see that 1.12। तो ये 0 के इक्वल ही है अराउंड, तो दिस इज कॉल्ड द नो ऑटो। 2 के नजदीक आता तो नो ऑटो होता। और हमारा वैल्यू आई है जी वो, ये डी की वैल्यू जो है वो इफ ओवर डी वैल्यू इज इक्वल टू 2, दिस इज कॉल्ड द नो ऑटो। 2 के नजदीक हो तो नो ऑटो, और अगर डी की वैल्यू 0 के करीब हो तो पॉजिटिव, और 4 के करीब हो तो परफेक्ट नेगेटिव ऑटो होगा। वेयर if the d value is closer to 4, for instance 3.3.753, so we can say that negative auto 0.9, 1.1, 0.0.3, so it means positive auto। तो हमारा ये जो हमने कैलकुलेट किया है लास्ट टाइम, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। ये जो है हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो here we can see ये हमारे पास रिजेक्ट एच नॉट एविडेंस फ्रॉम पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, zone of inclusion, do not reject H naught or H naught at both। ये 2 होगा तो नो ऑटो कोरिलेशन होगा। ये लोअर लिमिट है डी एल, और डी यू अपर लिमिट है, ये इसके लैग की वैल्यू है। नो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन एच नॉट और H1 है, दो नो नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। ये हमारे पास रेंज है जिसके मुताबिक हम देख सकते हैं कि हमने आया कि इसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है ऑटो कोरिलेशन। ये हमारे पास एक रिग्रेशन है वाई एट इज इक्वल टू, इसकी ये वैल्यूज हैं, ये बीटा की वैल्यूज हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर है, और ये टी की वैल्यूज है। यहाँ पे डार्विन वाटसन की वैल्यू आई है 0.1229। तो इट्स मीन दैट इट वैल्यू लाई 0.1
229, ये देखें 0 पॉइंट ये आ रहा है, तो ये its value is closer to 0 for instance, so it means that positive autocorrelation, positive autocorrelation 2 के नजदीक होता तो no autocorrelation. To illustrate the mechanics, let us return to our wages productivity regression for a data given by 12.5. Estimate d value can be shown in figure 0. Suggest that there is positive serial correlation in the residual. For the Durbin-Watson test, we find for the 40 observation and explanatory variable DL is lower limit 1.4 and D upper 1.55. The 5% since the compute the D value is 0.1229 lies below the DL. इसके below है और above the D, we cannot reject the hypothesis that is called the positive correlation. तो ये हमारे पास positive correlation auto correlation को show कर रहा है. This is the table of auto correlation. डर्बन वाटसन जो टेस्ट है उसका टेबल है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके कोरिलेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है. ये टैबुलेटेड वैल्यू है, तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेटेड और टैबुलेटेड को आपस में मैच करेंगे, तो यू कैन चेक वेयर द ऑटो कोरिलेशन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. The second test we use in this model is called the Brush-Graffre or LM test. LM test हम यूज करते हैं फॉर दैट टू अवॉइड द सम ऑफ द पिटफॉल. द डर्बन वाटसन में कुछ प्रॉब्लम है, जिस तरह के ये लैग की वैल्यूज को उठाता नहीं है या मिसिंग वैल्यूज डाटा में हूँ तो उनको ये इग्नोर कर देता है. तो उसके लिए फिर डी टेस्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन स्टैटिस्टिशियन Brush and Graffre have developed the test of autocorrelation that is general in sense that it allows for one non-stochastic regressor such as lag values of the regressant high order autocorrelation such as AR1, autoregressive 1, autoregressive 2. Simply high order moving average के लिए हमारे पास white noise test के लिए हम यानी LM test यूज करते हैं. White is equal to beta 1 plus beta 2 st plus 2. Assume that the error term ut are following pth order autocorrelation. Ut is equal to ut rho 1 ut minus 1 rho 2 ut and rho n. इसको हम assume करते हैं कि हमारा auto correlation का problem है. Where et is white noise, a term discussed in previously, as you will recognize this is simply the extent of AR1. So H naught जो है हमारे रो 1 is equal to रो 2 is equal to रो p is equal to 0. That is there is no serial correlation of any order. The BG test यानी ब्रश ग्राफिक टेस्ट involves the following steps. इसके steps हैं. Estimate the OLS to obtain the residual. पहले OLS को estimate करेंगे और residual हम हासिल करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, रिग्रेस रेजिड्यूल ऑन द ओरिजिनल एक्स वैल्यू जो हमारे पास है इंडिपेंडेंट वैल्यू है उसके ऊपर रन करेंगे. इफ देयर इज मोर देन वन एक्स वेरिएबल ऑन द ओरिजिनल मॉडल इंक्लूड द टर्म एज and ut minus 1 ut and ut minus p where the latter will lag the value of the estimate residual. Thus p4 row 4 will introduce the 4 lag value of the residual to additional regression. तो ये हम 4 लैग इसमें डालेंगे और देन हम ut is equal to ut minus 1 ut to obtain the r square from auxiliary regression. यहाँ से हमारे r square हम हासिल करेंगे. If the sample size is large, technically infinite, the brush graph shows that n minus p r square is approximately equal to x p square. So that is the asymptotically n minus p times the r square values obtained from the auxiliary regression. Follow the chi-square disturbance with p degree of freedom. If in an applicable n minus p r square exceed the critical chi-square value at chosen level of significance, we reject the null hypothesis, in which we case that at least one row in the significantly different from 0. तो इस तरह हम देखेंगे कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है उसके बाद ऑब्टेन होती है वो ग्रेटर देन 0 है, एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे. इट मीन दैट नो ऑटो कोरिलेशन, अदरवाइज ऑटो है. ये हमारे पास टेस्ट है जिसको हम रन करेंगे. इसको ये हम देखें तो यहाँ पे वी इलस्ट्रेट द टेस्ट वी कैन अप्लाई ओवर
illustrate using the AR scheme, we obtain the result shown in exercise 12.25. From the regression result, give it is seen by n minus p is 34, r square is 0.89%. हमने r square obtain कर लिया. Thus multiply these two, we obtain the value of chi square is 30.4. F6 was deal because of the model is misspecified, that is the exclude some important. इसमें से कुछ वेरिएबल हम इंपॉर्टेंट निकाल लेंगे. जब वेरिएबल जो वाले वेरिएबल जो इंपॉर्टेंट हमने निकाले हुए उनको डालेंगे तो ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. इफ इट इज प्योर ऑटो, one can be appropriate transformation of original model so that the transform model we do not have a problem of pure autocorrelation. As the case heteroscedasticity, we use the some type of generalized least square method. उसको हम use करेंगे. In large sample, we can also use the Norway test method to obtain the standard error of the OLS estimator and correct the autocorrelation. This method is also actually extend of white heteroscedasticity consistent standard error method which is discussed in previous chapter. तो हम वो भी टेस्ट वाइट टेस्ट भी कर सकते हैं. एक तो ये है कि हमारे मॉडल के अंदर हमने वेरिएबल को मिस स्पेसिफाइड किया, उन वेरिएबल को इंक्लूड करेंगे, ऑटो का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. मॉडल की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वहां से भी ऑटो का प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगा. अब देखें करेक्शन फॉर द प्योर ऑटो कोरिलेशन मेथड के लिए हमारे पास ये वेरिएबल है बीटा 1 बीटा 2 x2 म्यू एंड अज्यूम दैट अदर टर्म इज AR1 scheme. Normally ut is equal to rho ut minus 1 plus et. Now we consider the two cases. Rho is known and second rho is not known in the estimated model. So if rho is known, if the coefficient of first order autocorrelation is known, the problem of autocorrelation can easily be solved. Yt minus 1 is equal to beta 1 plus beta 2 xt minus 1 ut मल्टीप्लाई बाई रो इन द मॉडल. इस सारे मॉडल से रो माइनस कर मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा एक्चुअल मॉडल है फर्स्ट उसमें से सेकंड मॉडल को माइनस करते जाएंगे. ये जब माइनस करेंगे तो हमारे पास एक न्यू मॉडल आ जाएगा. ये देखें यू टी इंटू यू टी माइनस 1. जब रो की वैल्यू से पुट करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ऑटो रिमूव हो जाएगा. जब ऑटो रिमूव होगा तो हमारा मॉडल स्मूथ हो जाएगा. सिंस द एरर टर्म इन 12.96 9.6 stratifies that usually OLS assumption, we can apply the OLS to transform the variables y star and x star and obtain the estimator from the optimum properties. In this transformation, satisfy the linear assumption. Generalize and quasi difference equation it involves. तो ये हमारे पास ऑटो कोरिलेशन को हम ट्रांसफॉर्म मेथड से कर सकते हैं. ये देखें ये टेबल में गिवन है वाई टी हमारे पास गिवन है वैल्यू ऑफ वाई टी वैल्यू ऑफ एक्स टी. वाई टी माइनस 1 इसका लैग ले लिया तो एक वैल्यू मिस हो जाएगी और हम नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी. लास्ट वैल्यू में वैल्यू 5 मिस होगी. एक्स टी भी इसी तरह करके रो इंटू वाई टी माइनस 1 रो इंटू एक्स टी माइनस 1 वाई टी स्टारिक रो इंटू वाई टी एक्स टी स्टारिक. जब हमारे पास ये हम रिग्रेशन रन कर देंगे तो हमारे पास ut इज इक्वल टू 0.3 हमारे पास रो की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू ut माइनस 1. ये रिग्रेशन रन की ये रो की वैल्यू है. वाइट हिस्टोरिक एस्टिमेट द अबाउट ट्रांसफॉर्म वेरिएबल मॉडल. दिस इज द वे टू रिमूव द ऑटो कोरिलेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्म. तो इस तरह हम ऑटो कोरिलेशन को यहाँ से क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे. नाउ when row is not known, जहाँ पे रो नाउन थी और रो नॉट नाउन, जहाँ पे रो की वैल्यू हमारे पास गिवन थी वो 0.03 थी ना. अगर रो नॉट नाउन हो तो फिर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन रो इज नॉट नाउन तो सम रो इज लाइज बिटवीन 0 to 1 could be stated for two extreme position. As the extreme one could be assumed that rho is equal to 0. There is first order serial correlation at the other extent. So first difference हम लेंगे रो इज पॉजिटिव और नेगेटिव वाई टी माइनस 1 बी टी. ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म मॉडल आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू बीटा 2 डेल्टा एक्स टी इंटू ई टी. So here we can see since the error term is 12.9.7 is free from the first order serial correlation. To run the regression, all one has
to do from the first difference of the both regressor and regressor is run in the regression model. The first difference transformation may be appropriate टी कहते हैं और नॉन ट्रांसफॉर्म के लिए यूटी। इनका जब रेशियो लेंगे वे यूटी इज द ओवरऑल रिजल्ट फ्रॉम ओरिजिनल मॉडल एंड ईटी इज ओटी इज फर्स्ट डिफरेंस मॉडल। डिफरेंस का मतलब ये है स्टूडेंट के वाई टी -1 जो डिफरेंस है इनका आपस में माइनस करके इसकी जो वैल्यू जी की निकालेंगे तो जब जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ जी स्टैटिस्टिक अज्यूम दैट द लेवल फ्रॉम रिग्रेशन कंटेन द इंटरसेप्ट टर्म वी कैन डर्बन वाटसन टेस्ट। तो जी की वैल्यू हमारे पास आई क्या जी वो है ये 0.111 तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है कंसीडरिंग द डर्बन वाटसन टेबल 39 ऑब्जर्वेशन है 1.9 एंड 0.154 5% लेवल सिंस ऑब्जर्विंग लाइज बिलो द इसके बिलो डी we do not reject except keep in mind that there is the same Darwin Watson. We can null hypothesis is that mu rho is 1 and not equal to 0 equal to 0. The view of this finding the result is may be accepted. तो ये बिलो जब आएगी तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे वो keep in mind that the reject do not reject the null hypothesis. null h naught जो है वो नो ऑटो है और H1 ऑटो है तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन राइज इन द so here we can also see that rho is based on the Darboux-Watson test. If we cannot use the first difference transformation, rho not is statistically close to unitary, so we have rho is equal to d 1 minus d over 2. If our veggie product we obtain d from 0.9 using this value we obtain rho is approximately 0.9. Using this estimation rho value we can estimate the regression all the values subtract from 0 and previously value of yt -1 ये हमारे पास रो की वैल्यू हमारे पास गिवन आ जाएगी। इस तरह हम डर्बन वाटसन की टेस्ट से तो हम ये ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आइटरेटिंग मेथड एक ये मेथड भी है कि हम all the method of estimates in row discussed previously provide us with only a single estimate of row, but there is also called the iterating method और iterating method के थ्रू हम बार बार एस्टिमेट कर रहे होते हैं जिसको कोकरेन आर्कट मेथड भी कहते हैं। The Cochrane Arcade method is two-step procedure. The Darboux-Watson two-step procedure and that's the scanning of such processes. Of most popular Cochrane Arcade method ये हमारे पास है। इसमें हम एस्टिमेट करेंगे द कोक्रेन आइट्रेशन प्रोसेस में को एस्टिमेट करेंगे और उसमें से रो में से जो हमारा एरर टर्म है उसको प्रीवियस से वो करेंगे रिग्रेस करते जाएंगे हमारी रो की वैल्यूज आती जाएंगी और वो रो की वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मिनिमम होगी उसको हम अपने मॉडल में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है हमारा जो रो की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और डर्बन वाटसन एक्ट के तहत हमारा ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। Now we estimate ut is equal to rho ut minus wt which is also similar to provide the second round estimate of rho. Then we do not know whether the second round estimate of rho is best estimate of the rho. We go into the third round and fourth ऐसा करते करते जो हमारी रो की वैल्यू मिनिमम आएगी उसको हम अपने मॉडल में इंक्लूड करेंगे जिससे ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम रिमूव। बाद का डर्बन वाटसन एच टेस्ट भी हम यूज करेंगे। ये हमारे पास एक मॉडल है जब इसको रन करेंगे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल को यूजिंग द टेबल 12.4 टू एस्टिमेट द अबव मॉडल एज अ interpret your results since the model containing the lag regressant and regressor dependent or independent variable का lag the Darboux Watson D is not appropriate to find out if there is a serial correlation for such a model called the auto डेवलपमेंट एच टेस्ट। तो यहाँ पे अगर हमारा डर्बन वाटसन टेस्ट जब लैग की वैल्यू को कैप्चर नहीं करेगा तो डर्बन वाटसन एच टेस्ट यूज करेंगे। एच इज इक्वल टू रो एन ओवर 1 माइनस वेरिएंस ऑफ बीटा 3 वेयर एन इज
sample size, beta 3 is the variance of coefficient और रो की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन में हमारे पास पता चल जाएगा. So for the large sample size, technically asymptotically, Darboux-Watson has under the normal rho is equal to 0, h is equal to mean 0 or variance constant, that there is h statistics follow the standard normal distribution. From the property of the normal distribution, we know that the probability of h is greater than or equal to 1.96 is about 5%. So there is, if application of h is greater than 1, we reject the null hypothesis that rho is equal to 0, that there is evidence of first order autocorrelation in the autoregressive model and above. So these are the tests we use in this model. Today we have discussed about what do you meant by autocorrelation.